Good morning, students. So this is a new video for class 6 maths chapter 1 and part 2. So as we have done the recap exercise in the previous video, we will try to complete the remaining questions of the recap exercise. So I hope you have completed the previous exercise which I have given. Let's start. So the first question, write the following in expanded form. So as you have already learned in the previous class about the expanded form, and in this exercise you have to write the expanded form of the following numbers. So the number is, for example, the number is 2,15,678. So at first we will arrange the given number according to Indian place value chart. So as we have spelled the number, so 2,15,678. So we'll first arrange the given number. So we'll first write the place value, lakhs, 10,000, thousand, hundred, tens and ones, and we will put the number in their respective places, like 2 in lakhs, 1 in 10,000, 5 in thousand, 6 in hundred, 7 in tens, and 8 at ones. So after putting the given number in their places or in the place value, we will write the number and their place value. For example, if 2 falls in lakhs, so we will write 2 lakhs, then 1 falls in 10,000, we will write 1 10,000, then we will write 5 thousands, then 600, then 7 tens and 8 ones. Like this we will write the expanded form of any given number. जैसे कि हम लोग को नंबर दिया गया है 2,15,678, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म या उसका बड़ा फॉर्म, जिसे लॉन्ग फॉर्म भी बोलते हैं हम लोग, उसमें अरेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, किसी भी नंबर को उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से पहले अरेंज कर लेते हैं. तो जैसे कि हम लोग द नंबर इज़ 2,15,678, तो उसको हम लोग पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से अरेंज कर दिए. उसके बाद क्या किए कि जो भी डिजिट जिस प्लेस वैल्यू में है उसको हम लोग लिख देते हैं. जैसे 2 है लैक्स में, 1 है 10,000 में, 5 है थाउजेंड में, 6 है 100 में, 7 है टेंस में और 8 है वंस में. सो इस तरह हम लोग इन नंबरों का एक्सपैंडेड फॉर्म या फिर लॉन्ग फॉर्म लिख सकते हैं. एंड देयर इज़ वन मोर टाइप in which you can write the expanded form of the given number. So we'll start from the first. So as the first digit is 2 and it falls in the lakh place value, so what we'll do, first write the digit and we'll count the remaining place value that are left on the right hand side of the given number. तो जैसे कि हम लोग पहले इस तरीके से बना चुके हैं, तो ये तो एक तरीका हो गया कि जिसमें उस डिजिट को और उसके प्लेस वैल्यू को लिख देंगे तो ये उसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा. दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग उसके प्लेस वैल्यू को ना लिख के उसके जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे. फॉर एग्जांपल जैसे पहला है 2 लैक्स, तो जो डिजिट 2 है वो लैक्स में फॉल करता है, और उसके बाद अगर हम लोग काउंट करेंगे तो उसके बाद 5 डिजिट रहता है, जैसे 10,000, थाउजेंड, 100, टेंस और वंस. तो ये 5 डिजिट बचा हुआ. तो क्या करते हैं हम लोग, अगर हम लोग ज़ीरो के हिसाब से करेंगे तो फर्स्ट जो डिजिट है 2 उसको ले देंगे और फिर 5 ज़ीरो पुट कर देंगे एंड वी विल डिफ्रेंशिएट यूजिंग द कॉमाज, और फिर कॉमा के हिसाब से उसको अलग अलग भी दिखा सकते हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए कि ये कौन से प्लेस वैल्यू का. तो क्या करेंगे हम लोग 2 लिखेंगे और उसके बाद राइट हैंड साइड में जैसे कि 5 डिजिट दिख रहा है हम लोग को, तो उन 5 डिजिट की जगह हम लोग ज़ीरो पुट कर देंगे और सबसे पहले लिख देंगे 2 लैक्स, देन फिर अगेन 1 है और 1 के बाद 4 डिजिट है तो 10,000,
देन अगेन 5 के बाद 3 डिजिट है तो 5000, देन 6 के बाद 2 डिजिट है 600, देन 7 के बाद 1 डिजिट है 70 एंड लास्ट 8। सो इस तरह करके हम लोग किसी भी नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 3,01,639। So before expanding any given number, we will first arrange the given number in the Indian place value chart. So again, the number starts from 3 lakhs. So we have written the place value according to the respective quotient, and now we'll put the digit on their places in which they fall. And I have told you how to write the expanded form of the given number. So what we'll do, we'll write the first digit and count the remaining digit that fall on the right hand side of the given number, and we'll put 0 in place of the numbers. So for example, the first digit is 3 and the remaining digit on the right hand side of the given number or the digit is 5, so we'll write 3 and put 50, so it becomes 3 lakh. Then in place of 10,000 it is 0, so if we'll write only 0. Then next 1 and there is a 3 digit, so we'll write 1000, then 600, then 30 and 9. So like this we will arrange the number in an expanded form. तो जैसे कि दूसरा नंबर है, जो नंबर है 3,01,639, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म में लिखने से पहले हम लोग उस नंबर का इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से अरेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको अरेंज कर दिया और फिर उसके बाद जो डिजिट जिस प्लेस वैल्यू में फॉल करता है उसको हम लोगों ने लिख दिया, और उसके बाद जो 3 है लैक्स में फॉल करता है, 0, 10,000, 1,000, 600, 3 टेंस और 9 जो है वो वंस में फॉल करता है। और उसके बाद हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि जिस प्लेस वैल्यू में उससे मल्टीप्लाई करते जाते हैं उस डिजिट को, तो वो उस डिजिट का प्लेस वैल्यू निकल जाता है। तो जैसे 3 लैक्स में है तो 3 को लैक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, 10,000 में 0 है तो 0 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर 0 ही आएगा, तो 0 लिख दिए। देन फिर 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1000 आ गया, 6 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 600 आ गया, 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर 30 आ गया, 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 9 आ गया। सो लाइक दिस विल अरेंज any given number in the expanded form. Now we'll move to the next topic, and the next topic is write the following number in short form. So अभी हम लोगों ने expanded form देखा, now we'll write the expanded form number in the short form. So the number is 2,50,006,230 and 4. So before writing any number in the short form, first we'll arrange the number according to the Indian place value chart. So the first is 2 lakh, so in lakhs we will write 2, then in 10,000 there is 50,000, so we'll write 5 in 10,000, then in 1,000 there is 6, in 100 there is 2, in tens there is 3, and in ones there is 4. So we'll put the respective number in the given places. And after that, what we'll do, we'll write the number arranged in the place value chart and separate them using the commas. तो किसी भी एक्सपेंडेड नंबर को शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उन सारे नंबर्स को पहले हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से अरेंज कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है 2,50,000, 6,230 and 4, तो 2 लाख है तो लैक्स को हम लोग 2 प्लेस वैल्यू में रख दिए, फिर 50,000 में से 5 को 10,000 में, फिर 6 को 1000 में, 100 को 2 को 100 में, 3 को 10s में और 4 को 1s में। और फिर इस तरह प्लेस वैल्यू में अरेंज करने के बाद
हम लोग उन सारे नंबर को लिख देते हैं और उसमें कॉमा यूज़ करते हैं ताकि उसको हम लोग सेपरेट कर सकें, ताकि पता चल जाए कि वो नंबर्स किस ग्रुप में या फिर किस तरह से लिखा जाता है. सो लाइक दिस विल राइट एनी expanded form number in the short form. Let's take another example. 1,05,804. So again, first what we'll do, we'll arrange the given number in the Indian place value system. So in lakh we will write 1. There is no 10,000, so we'll put 0. There is 5,000, so we'll write 5 in the thousand place value. Then at 100 place it's 8, we will write 8. In tens there is no number is given, so we will write 0, and once there is 4. Now we will write the number accordingly. First we will write 105,804 and we will separate the number using the commas. So the number will be 1,05,804. तो जैसा कि दूसरा एग्जांपल है, इसमें है 1,05,804. तो इस नंबर को देखेंगे तो इसमें क्या मिलता है कि लैक्स है, 1000 है, 100 है और वंस है, लेकिन इसमें 10,000 और टेंस में कोई भी डिजिट नहीं दिया हुआ है. जब भी ऐसा आता है कि किसी प्लेस वैल्यू का कोई भी डिजिट या नंबर नहीं दिया होता है तो हम लोग वहाँ 0 पुट कर देते हैं, और ये हम लोग पिछले क्लास में भी देख चुके हैं. सो अब ये जो नंबर है इसको इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से अरेंज कर देते हैं. तो लैक्स में 1 आ जाएगा, 10,000 में कोई भी नंबर नहीं है, सो हम लोग 0 लिख देंगे. 1000 में 5 है, 100 में 8 है, टेंस में भी कोई नंबर नहीं है तो हम लोग फिर से 0 लिख देंगे, और वंस में 4 है तो हम लोग 4 लिख देंगे. और अब इन सारे नंबर्स को एक साथ लिख देंगे और फिर हम लोग कॉमा यूज़ करके इसको सेपरेट कर देंगे ताकि हम लोग को ये नंबर्स समझने में और लिखने में भी ईजी हो. सो द नंबर इज 1,05,804. Now we'll move to the next question. And the next question is, find the place value of the underlying digit. तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए होंगे और उसमें से कोई डिजिट अंडरलाइन किया होगा और उसका प्लेस वैल्यू निकालना है. सो फर्स्ट लेट्स सी द नंबर. The number is 2,35,689 and here 3 is underlined. तो ये नंबर है 2,35,689 और यहाँ पर 3 अंडरलाइन किया हुआ है, तो हम लोगों को 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है. सो बिफोर फाइंडिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट विल अरेंज द गिवन नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग नंबर्स को इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से अरेंज कर देते हैं. सो 2,35,689 को हम लोग उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से अरेंज कर दिए, और क्योंकि 3 जो है वो 10,000 के प्लेस में आ रहा है, सो 3 मल्टीप्लाई 10,000 और 3 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो क्या हो जाएगा, 10 3 सा 30, तो 30,000. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 30,000. Now let's take some more example. Now next example is 3,56,109 and here again 3 is underlined but at different place value. So यहाँ पर भी जो दूसरा एग्जाम्पल है, ये नंबर है 3,56,109 और यहाँ पर भी 3 अंडरलाइन है लेकिन वो दूसरे प्लेस पे है. तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, वी विल अरेंज द गिवन नंबर according to Indian place value system and we'll write the respective number according to their places in which they fall. Now here the digit 3 or the underlined digit fall at lakhs place, so we'll multiply 3 with lakhs. So 3 into 1 lakhs means 3 1 are 3, so the answer should be 3 lakhs. So like this we'll find the place value of underlined digit of any given number. So इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी डिजिट का हम लोग प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं. एंड ऑल दीज वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो.
और ये सारी चीज़ हम लोग पिछले क्लास में भी सीख चुके हैं. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, find the sum of the place value of the underlined digit. So here we have to first find the place value and then we have to sum up or add the place value of the underlined digit. तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को जो भी डिजिट अंडरलाइन किया हुआ होगा उसको हम लोगों को क्या करना है, उसका पहले हम लोग प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे. सो लेट्स सी what the number is. So the number is 3,56,049. तो यहाँ जो नंबर दिया हुआ है वो है 3,56,049 और यहाँ पर दो डिजिट जो है वो अंडरलाइंड है, एक 3 है और एक 4 है. सो एट फर्स्ट व्हाट विल डू, वी विल अरेंज द गिवन नंबर अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इन सारे डिजिट्स को इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से अरेंज कर देते हैं. अब यहाँ क्या करना है हम लोग को, नाउ वी हैव टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ टू अंडरलाइन डिजिट 3 and 4. सो विल स्टार्ट फ्रॉम 3. सो एट फर्स्ट 3 falls in or comes in lakhs place value, so we'll multiply 3 with lakhs. 3 को हम लोग लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 into 1 lakh equals to 3 lakh. आफ्टर दैट जो दूसरा डिजिट है 4 फॉल्स इन टेंस प्लेस वैल्यू. सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई 4 10. तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 4 टेंस प्लेस वैल्यू में है तो हम लोग 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 10 जा 40. सो हम लोगों को यहाँ पर दो प्लेस वैल्यू मिल गया. 3 का प्लेस वैल्यू हो गया 3 लाख एंड 4 का प्लेस वैल्यू हो गया 40. अब हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू ऐड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स. सो विल ऐड 3 lakhs एंड 40. सो 3 लाख और 40 को ऐड कर देंगे, सो द आंसर वुड बी 3,40,000. सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग दो टॉपिक जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं उसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं. तो जो दो टॉपिक है वो है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रेडिसेसर होता क्या है. ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर से एक रिकैप ले लेते हैं. सो प्रेडिसेसर इज द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर एनी नंबर. सो प्रेडिसेसर उस नंबर को कहते हैं जो किसी भी नंबर के जस्ट पहले आता है. सो हियर इज एन एग्जाम्पल. You have to find the predecessor of 2,36,784. So we have to find the previous number of 2,36,784. So to find the predecessor of any number, we will subtract 1 from that given number. किसी भी नंबर का predecessor या फिर पिछला नंबर निकालने के लिए उससे हम लोग अगर 1 घटा देंगे तो जो आंसर आएगा घटाने के बाद वो उस नंबर का predecessor कहलाएगा. जैसे कि यह नंबर है 2,36,784. इसमें से अगर हम लोग 1 घटा देते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 2,36,783. तो दिस इज द प्रेडिसेसर ऑफ 2,36,784. तो ये 2,36,784 का प्रेडिसेसर हो गया. आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक वाज सक्सेसर. सो सक्सेसर इज द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर एनी नंबर. तो किसी भी नंबर का सक्सेसर उसके जस्ट बाद वाला नंबर कहलाएगा. सो टू फाइंड द सक्सेसर ऑफ एनी नंबर वी विल ऐड 1 टू द गिवन नंबर. तो किसी भी नंबर का सक्सेसर या फिर नेक्स्ट नंबर जानने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसमें 1 ऐड कर देते हैं. सो वी हैव टू फाइंड द सक्सेसर ऑफ 3,82,199. तो यहाँ पे एक नंबर है 3,82,199 और इसका सक्सेसर यानी कि नेक्स्ट नंबर हम लोगों को जानना है. सो टू फाइंड द सक्सेसर ऑफ एनी नंबर व्हाट विल डू, विल ऐड 1 टू दैट गिवन नंबर. हम लोगों को किसी भी नंबर का सक्सेसर जानने के लिए उसमें 1 ऐड करना होता है. सो इस नंबर में भी अभी हम लोग 1 ऐड करेंगे. सो 3,82,199 में अगर हम लोग 1 ऐड करेंगे
So the answer will be 3,82,200. So like this we will find the successor and predecessor of any given number. Now, so this is the last question of your recap exercise. So try to complete the recap exercise